So now we are going to discuss the effect of this, the Middle English. What were the changes which were brought about in terms of vocabulary? What were the changes in vocabulary, addition, deletions, or any alterations? So the French influence on English vocabulary. You already know Norman conquest. Uh, there was a new rule which was set up in England. The rulers were the Normans. They used French. They were French in their manners, and they used French as the language of the court, as the language of the judiciary. So the English language, they could not remain immune. That was affected by this new uh, language of the rulers. Okay, so now what were the changes? Now England had literally become a bilingual nation, right? Because in England there were different dialects which you can call as Old English. So those dialects were spoken across different regions of this particular part of the world. But after Norman conquest, क्या हुआ? फ्रेंच जो थी वो इंग्लैंड के अंदर एज अ लैंग्वेज इट केम, और जो लैंग्वेज थी, बिकॉज इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स, तो इट वाज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज, राइट? सो इंग्लैंड जो था एक तरह से बाइलिंगुअल, और बाइलिंगुअल एग्जैक्टली नहीं है ये, एक्चुअली वो ट्राइलिंगुअल था, क्योंकि लैटिन जो थी ऑलरेडी इट हैड लेफ्ट इट्स मार्क ऑन द इंग्लिश टर्म, ओके, वो पहले से ही. एंड इवन दिस रोमन कैथोलिक चर्च which was essentially Latin in its use of different words. तो इस तरह से डोमिनेंटली इट वाज अ बाइलिंगुअल नेशन, जहां फ्रेंच जो थी वो लैंग्वेज थी नोबिलिटी की, कोर्ट्स की, ऑफिशियल बिजनेस की, और इंग्लिश किसकी थी? कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी. सो दिस सोशल डिवाइड क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर म्यूचुअल वोकेबलरी बोरोइंग. तो इस तरह से क्या हुआ कि एक को रूल करना है, दूसरे से काम भी लेना है. तो रूलर ने जो नेचुरल जो वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस थी, दे टुक इंटरेस्ट इन दैट, दे लर्न दैट. एंड people, because French was considered with power and prestige, so many words got into English naturally, right? तो ये जो borrowing थी, ये सिमेट्रिकल नहीं थी. इसका मतलब क्या हो कि जितने वर्ड्स फ्रेंच से इंग्लिश में आए, उतने ही इंग्लिश से फ्रेंच में नहीं गए. Why? Because of the dominant nature of French. Because French was already a well-established language, and moreover, it was the language of the rich and the nobles, those who ruled. Okay, so what are the key facts about this period? If you talk about the key facts, then before 1250, there were approximately 900 French words which were borrowed into English. Okay, और लोअर क्लासेस जो थी वो फ्रेंच सीख रही थी. हाउ? बिकॉज ऑफ देयर डेली डीलिंग्स विद नोबिलिटी, क्योंकि उनको इंटरेक्ट तो करना ही था. लाइक एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया, so they also had to interact with the common people, the local people. So that is how they came in contact with different languages of India. Similarly, Indian people, because they wanted to rise and they wanted to have some kind of respectable jobs and positions in the British Empire. So many people, they learned English also, right? So ये mutual exchange जो था, ये दोनों तरफ से हो रहा था. But जो फ्रेंच थी इसमें एक डोमिनेटिंग पोजीशन में थी. सो आफ्टर 1250 व्हाट हैपेंस, दिस बोरोइंग इंक्रीज्ड बिकॉज the French speaking upper classes, they started adopting English. So total French borrowings in Middle English period, you can count almost 10,000 words which came into English via French, yeah, through French, whose root is French. Okay, so कहाँ ये words आए? तो सबसे पहले, this is very logical, because French was the language of the rulers, the court, the judiciary, uh, same thing, and the nobles. So mostly the official and governmental vocabulary. The ruling class, क्योंकि predominantly they were Normans, और वो सारी जो भी उनकी काम धंधे थे वो फ्रेंच में करते थे. तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स थे, वो
जो थे. Today we do not know this difference. If you don't know the history of language, then a common layman just takes them as English words, but actually they are French, right? So from French, the they borrowed words like crown, empire, realm, reign, sovereign, parliament, okay, statue, statuette, alliance, noble, prince, duke. So all these words are basically from French. And there were some native English survivors as well, like king, queen, lord, lady, and okay, so they still remain there, right? Then you talk about the ecclesiastical vocabulary. Ecclesiastical means something which is related to the church, church affairs. So church के जो hierarchical structure होता है, hierarchical structure means the different levels of its administration, right? तो उसके जो high dignitaries थे, वो भी Normans थे. So French was the everyday language of monasteries and religious houses. तो इस तरह से एक फ्रेंच जो थी एक तरह की एक एक वाया मीडिया बना फ्रेंच वोकेबलरी एंटरिंग इनटू इंग्लिश. तो बहुत सारे थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसे थियोलॉजी, सैक्रामेंट, बैप्टिज्म, कम्युनियन, पेनेंस, शिज्म, रेवरेंस, ये सारे वर्ड्स कहाँ हैं? ऑल ऑफ देम दे हैव फ्रेंच ओरिजिन. देन चर्च रैंक्स एंड टाइटल. चर्च के जो रैंक्स होते हैं जैसे क्लर्जी, प्रीलेट, कार्डिनल, डीन, all these they are from French. Okay, objects and places. जैसे abbey है, right? Cloister, sanctuary, lectern, and incense. Then verbs like pray, chant, adore, anoint, ordain, solemn, reverent, and devout. These are examples. You know, all words are not covered here, but you can understand from these examples that how deep this French influence was. Okay, next is the legal vocabulary. अब अब चर्च उनका, कोर्ट उनके, सरकार उनकी, तो वर्ड्स भी उन्हीं के चलते थे. बाबू सीधा सा ये लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. तो लीगल वोकेबलरी जो भी थी, बिकॉज इट फ्रेंच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द लॉ कोर्ट्स, राइट? सो all almost so many words they came from French, like जैसे concepts and proceedings हैं, जैसे justice, equity, judgment, bar, suit, plaintiff, inquest, verdict, ये सारे के सारे crime से related, felony, perjury, adultery, fraud, and property law से related words जैसे property, okay, bounds, tenant, legacy, patrimony, and legal verbs like sue, accuse, assign, condemn, acquit, or pardon. And similarly, many adjectives also. So you can understand that a lot of words came via French or through French. Then military vocabulary, क्योंकि rulers यही थे, military के commanders वही थे. Okay, so obviously many words related to war, forces and organization, जैसे army, navy, garrison, captain, lieutenant, sergeant, spy, ये सारे के सारे कहाँ से आए? फ्रेंच से आए, right? Conflict and strategy से related, enemy, skirmish, siege, peace, banner, they they all came uh, through French, yeah, via French. Equipment, mail, archer. So this is how, you know, different words related to military or war. Then art, science, and learning. Okay, because these are the things which are cultivated and patronized by the upper classes. अब जिसके पास टाइम होगा, जिसके पास एक एस्थेटिक सेंस होगी, जिसके पास मनी होगा टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स, आर्ट, साइंस एंड यू नो लर्निंग, तो कॉमन आदमी तो बेचारा वो अपना दो वक्त की रोटी, घर परिवार को पालना, इसी में वो फंसा रहता है. तो उसके पास ये चीजें जो थी, दे आर जस्ट मैटर्स ऑफ लग्जरी फॉर अ कॉमनर. तो ये सारी चीजों में कौन इंटरेस्ट ले रहा था? अपर क्लासेस. और अपर क्लासेस कौन थे? फ्रेंच. तो इस डोमेन में भी बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो वया फ्रेंच आए, जैसे फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर के वर्ड्स, स्कल्पचर,
painting, music, beauty, figure, right? Similarly, chimney, lettuce, pinnacle, okay, literature and learning related words, poet, romance, chronicle, tragedy, prologue, preface, पेपर पेन ये भी फ्रेंच ही है जो पेपर और पेन तुम सोचते हो ये तो इंग्लिश वर्ड है इट्स ओरिजिन इज एक्चुअली फ्रेंच लॉजिक ज्योमेट्री ग्रामर अब फर्क क्यों नहीं रहा बिकॉज इंग्लिश हैज अडॉप्टेड देम एज इट्स ओन उसने कभी नहीं कहा है ये मेरे नहीं उसने कहा है सब मेरा है or that is why this widely acceptable language across the world also then medicines related physician surgeon malady anatomy pestilence argue balm jaundice all these words they came by a french uh, next is social life fashion and food okay so the social and cultural trends which were set by the French speaking upper classes क्योंकि मैंने कहा कि आम आदमी कॉमनर्स थे ब्रिटिश पीपल तो उनको तो बेचारा अपना जिंदगी चलाने से मतलब था लेकिन ये फूड फैशन लिटरेचर आर्ट ये सब बड़े लोगों के काम होते थे और तो इसीलिए बड़े लोग कौन थे वो ऑब्वियसली नॉर्मन से जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे तो बहुत जो फैशन करने वाले कौन थे वही थे तो बहुत सारे वर्ड्स फैशन में जैसे ड्रेस कलर अपैरल गारमेंट ओके क्लोक फ्रॉक ओके पेटीकोट एंड कलर्स कलर्स के नाम भी जैसे ब्लू है ब्राउन है वर्मिलियन है कहाँ से है फ्रेंच से है एंड प्रेशियस स्टोन्स के नाम जैसे कई लोग पहनते हैं amethyst topaz emerald sapphire pearl diamond coral crystal so all these words they are rooted in French okay so this is how you can understand this और इसके साथ साथ मैंने कहा जब मैंने बोला ना बाइलिंगुअल नहीं ट्राइलिंगुअल था बट मेजर इन्फ्लुएंस इस पर्टिकुलर पीरियड में फ्रेंच थी बट लैटिन ऑल्सो कंटिन्यूड इट्स इन्फ्लुएंस ओके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओके डायरेक्टली कैसे जो हमारा चर्च था उससे और इनडायरेक्टली कैसे जो फ्रेंच के थ्रू आए लैटिन के वर्ड्स ओके सो दे एंटर इनडायरेक्टली तो ये जो वाइक्लिफ जो जोफ्री चौसर की ये उसी की बात करें तो लगभग 1000 लैटिन वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हुए उसी टाइम में church से related because of that Roman Catholic nature of the church. Okay, so examples आप quote कर सकते हैं adjacent, intellect, moderate, legal, lucrative, lunatic, mechanical, okay, stupor, supplicate and suppress. अब एक बार जब आ गए तो फिर ये जैसे आपने अगर कोई मान लो आप बोलते हो मेरे पास जर्मन शेफर्ड राइट तो अब वो जर्मन शेफर्ड नहीं रहा अब वो इंडियन शेफर्ड हो गया समझ गए आपके घर में रहेगा आपके तरीके से जिएगा आपने उसको अपना बना के रख लिया तो अब वो जो था वो आप कहते हो कि मेरा कुत्ता है ये जर्मनी वालों का कुत्ता नहीं है राइट सो दिस इज हाउ this is how these languages they became once they entered into the English arena of English language, they became part and parcel of this language. Right? उनको separate करना जो था वो अब मुश्किल था and they could not be actually. So if you take out these words, चाहे फ्रेंच को निकाल लो, लैटिन को निकाल लो, ग्रीक को निकाल लो, दूसरी जो इन लैंग्वेजेस को निकाल दोगे तो आपको पता चलेगा इंग्लिश के पास अपना कुछ नहीं है. So they are borrowed from all sources, whatever they came in contact with. So one of the most remarkable consequences of borrowing from French and Latin, उससे क्या हुआ एक बहुत एक कॉम्प्लेक्स और रिच नियर सिनोनिम सिस्टम बन गया इंग्लिश में ओके जहां पे दूसरी लैंग्वेजेस में हो सकता है एक ही वर्ड हो लेकिन इंग्लिश के अंदर आपको बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे जैसे आस्क ओल्ड इंग्लिश में आस्क था फ्रेंच अगर आपने यूज करनी है तो क्वेश्चन हो जाएगा लैटिन में वही चीज इंटेरोगेट हो जाएगी right? Similarly, fire in Old English, flame in French, and conflagration in Latin. Fear in Old English, terror in French, and trepidation in Latin. ओके तो ओल्ड इंग्लिश जो थी वो प्लेन डायरेक्ट और एवरीडे यूज की लैंग्वेज की तरह है जैसे आस्क आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आई आस्क्ड
लेकिन अगर आपने थोड़ा सा और एलिवेट करना है अपने स्टाइल को, तो आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन, आई क्वेश्चन हिम। देन और आपने एकेडमिक या स्कॉलरली बनाना है उसको, तो आप कौन सी यूज करेंगे? लेटिन यूज कर लेंगे, आई इंटरोगेटेड हिम, right? So this is how English vocabulary was enriched, and this is how it provided a lot of options for the readers or the users of English language. तो जिस तरह का आपका थीम है, उसी तरीके से आप वर्ड्स भी चूज कर सकते हैं. यू हैव दिस चॉइस इन इंग्लिश, राइट? देन मॉडिफिकेशन एंड एंग्लिसाइजेशन. सो फ्रेंच वर्ड्स वो बिल्कुल वैसे के वैसे नहीं आए इंग्लिश में होलसेल में, ठीक है? वो एक्टिवली दे वर मॉडिफाइड, और उनका अंग्रेजीकरण भी किया गया, एंग्लिसाइज्ड, ताकि वो इंग्लिश ग्रामर और वर्ड फॉर्मेशन पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश में फिट हो जाए. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. सो एडेप्टेशन वाज सेंट्रल टू द एनरिचमेंट ऑफ लैंग्वेज. कि ऐसे का ऐसे ही नहीं, जैसा आया वैसे ही उसको काटा गया, छांटा गया, ठीक है, और उसको इधर के हिसाब से उसको सेट किया गया. सो लॉट ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, दे वर सफिक्स्ड, उनके साथ सफिक्स जोड़ के टू जनरेट अ फैमिली ऑफ न्यू वर्ड्स. जैसे फेथ वहां से आया, फेथ जो था वो फ्रेंच वर्ड था, उसको नेटिव इंग्लिश सफिक्स दे दिया उन्होंने फुल, तो बन गया फेथफुल. और उसको एक दूसरा दे दिया, फेथलेस बना दिया, फिर फेथफुलनेस बन गया, फिर फेथफुली बन गया. तो वहां से एक ही आया था, और यहाँ इन्होंने चार पांच जो थी वो इसके साथ लगा के एंडिंग्स और सफिक्सेस चेंज करके दे क्रिएटेड डिफरेंट वर्ड्स. फेथफुल, फेथलेस, फेथफुलनेस, फेथफुली. ओके. इसी तरह से प्रीफिक्सिंग भी किया गया. जो फ्रेंच रूट्स थे, रूट वर्ड्स थे, उनके साथ प्रीफिक्स मतलब पहले लगा के उन्होंने उनको दे अडेप्टेड देम टू द इंग्लिश लैंग्वेज. जैसे बियर, बियर से फॉर लगा के फॉर बियर हो गया. ओके. जैसे गेट के पहले फॉर लगा के फॉरगेट हो गया, सेक के पहले फॉर लगा के फॉर सेक हो गया, या फॉर लॉर्न हो गया. So this blending of French roots with English affixes is a defining feature of the Middle English. तो इस तरह से एक हाइब्रिड सिस्टम हमारे पास बन गया, और बहुत एनरिचमेंट हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की. अफिक्स, एफिक्सेशन होता है एडिंग प्रीफिक्स और सफिक्स. अगर पहले लगा है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और लास्ट में लगा है तो सफिक्स बोलते हैं. एफिक्स इन दोनों का नाम है. एडिंग यू नो समथिंग टू अ वर्ड, चाहे पहले ऐड करोगे तो प्रीफिक्स हो जाएगा. ये आपको मॉर्फोलॉजी में भी काम आएगा. सो दोज हु आर अटेंडिंग क्लासेस, दे आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ थिंग्स हियर. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेगेसी. किस तरह से वोकेबलरी जो ट्रांसफॉर्म हुई. लगभग 900 1000 वर्ड्स ले सकते हैं आप, 1250 से पहले थे. उसके बाद जब फ्रेंच डायरेक्ट वो जो नॉर्मन्स के थ्रू कांटेक्ट में है, देन दिस इंक्रीज टू 10K, 10,000 टोटल फ्रेंच बोरोइंग अक्रॉस द मिडिल इंग्लिश पीरियड. और लैटिन वर्ड्स वो भी पीछे नहीं थे, वो भी लगभग 1000 के आसपास. और हमारे पास 3 सिनोनिम टियर सिस्टम बन गया, इंग्लिश, फ्रेंच और लैटिन. किस तरह से वो आस्क, आस्क के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन और इंटेरोगेट, तीन तरह के एक 3 टियर सिस्टम हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग. जैसे कॉमन लैंग्वेज में आस्क है, थोड़ा सा उसको एलिवेट करना है तो आप क्वेश्चन करेंगे, और फॉर्मल करना है तो इंटेरोगेट. Right? So Middle English period saw English transform from a linguistically isolated tongue into one of the most receptive and expressive languages. तो जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई, उससे इंग्लिश जो थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई. उससे क्या हुई हो? टर्बो चार्ज हो गई हो, टर्बो चार्ज. उससे क्या हुआ? उससे बहुत ही वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स abundant vocabulary was added into English. और वो ऐसे नहीं है, इट वॉज अडेप्टेड, प्रीफिक्स्ड एंड सफिक्स्ड एज पर द लोकल नीड.